بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متی۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابعہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ ایرانی حملوں کی 51ویں لہر، سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں کی بارش، امریکی شہریوں کو فوری عراق چھوڑنے کی ہدایت۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کئی ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایران کو نابود کرنا قام خیالی ہے، سابق سربراہ IAEA کی مغربی پالیسیوں پر تنقید، محمد البردائی کا بیان۔ لبنان براہ راست امن مذاکرات کے لیے تیار، جنگ بندی کو شرط قرار، اسرائیل کی زمینی کارروائی کی دھمکی کے دوران سفارتی کوششیں تیز۔ شمالی کوریا کا جوہری صلاحیت کے حامل راکٹ لانچر کا تجربہ، خطے میں کشیدگی کے دوران کم جونگ ان کی نگرانی میں فوجی مشق۔ اور آسام، بنگال، کیرلا، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کا اعلان، 9 اپریل سے ووٹنگ شروع، تمام نتائج 4 مئی کو کیے جائیں گے جاری۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعد صادق کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق سعودی عرب الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا، جہاں F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ 51واں حملہ شہید ابوالقاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا۔ اس بیچ بغداد میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو عراق فوری طور پر چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر مشرق وسطیٰ میں ہزاروں انٹرسیپٹر ڈرون بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فوجی حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آکٹوپس نامی انٹرسیپٹر اینٹی ڈرون سسٹم کو مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ انٹرسیپٹر برطانیہ میں تیار کیا جاتا ہے اور پہلے ہی یوکرین کو روس کے خلاف دفاع کے لیے فراہم کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے نتن یاہو کے قتل کی خبر کی افواہ کو افراح قرار دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نتن یاہو خیریت سے ہیں۔ اس بیچ ایران کی IRGC نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جاری جنگ کے دوران وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو نشانہ بنائے گا۔ IRGC کا کہنا ہے کہ اگر یہ بچوں کا قاتل مجرم زندہ ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے رہیں گے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیل وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو گزشتہ کچھ دنوں سے میڈیا میں دکھائی دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں گزشتہ روز کی زوم میٹنگ کو AI ویڈیو بھی کہا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل کے دارالحکومت میں کل منعقد کردہ کابینی اجلاس میں بھی بنجامن نتن یاہو نظر نہیں آئے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ کے اجلاس میں نتن یاہو نظر نہیں آئے۔ اس انتہائی اہم اجلاس سے نتن یاہو کی عدم موجودگی سے شبہات میں اضافہ ہو گیا تھا۔
लेबनान ने इसराइल के साथ बराह रास्त अमन मज़ाकिरात शुरू करने पर आमदगी जाहिर की है, ताहम इसने वाज़ेह किया है कि मज़ाकिरात के आगाज़ से पहले जंग बंदी लाजमी होगी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसराइल लेबनान पर मुमकिना ज़मीनी हमले की धमकियां दे रहा है, जो 2006 की जंग के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने करीबी मुशीर रॉन डर्मर को लेबनान के साथ सिफारती मुज़ाकिरात में इसराइल की क़ियादत सौंपी है। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद जेड कुशनर मुमकिना तौर पर अमेरिका की जानिब से इन मुज़ाकिरात में शिरकत कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुज़ाकिरात आइंदा चंद दिनों में पेरिस या क़ब्रस में शुरू हो सकते हैं और इनमें फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इस दौरान ये खबरें भी सामने आई कि फ्रांस ने एक अमन मनसूबा पेश किया है जिसमें हिज़्बुल्लाह के तख़फ़ीफ़ी असलहा और लेबनान की जानिब से इसराइल को जंग के खात्मे की शराइत तस्लीम करने की तजावीज़ शामिल हैं। ताहम फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने ऐसी खबरों की तरदीद की है। उधर लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर और औरामिल तहरीक के रहनुमा नबिया बरी ने कहा है कि लेबनान मुज़ाकिरात पर आमादा है, लेकिन उसके लिए जंगबंदी पहली शर्त है। दूसरी जानिब खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों के बायस कशीदगी बरकरार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ईरानी फौजी सलाहियतों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। इसी दौरान प्रेस टीवी ने रिपोर्ट में कहा है कि इराक़ी मुज़ाहमती ग्रुप ने वीडियो जारी करते हुए मगरबी एशिया में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों का दावा किया है, जबकि इराक़ में एक अमेरिकी अड्डे पर मुबैना हमले के बाद आग लगने की इत्तलात भी सामने आई है। एटमी तवानाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी IAEA के साबिक़ डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल-बरदाई ने कहा है कि ईरान को नीस्त नाबूद करने की कोशिशें महज खाम ख्याली हैं और इस किस्म के मंसूबे दुनिया को भारी कीमत अदा करने पर मजबूर कर सकते हैं। एक खुसूसी गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद अल-बरदाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों का मकसद उसे ख़त्म करना दिखाई देता है, ताहम ईरान की मुकम्मल नाबूदी का तस्वर हकीकत से बईद है। उनके बकौल जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इससे ऐसा महसूस होता है कि गज़ा की तबाही और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीदों को कमज़ोर करने के बाद अब बाज़ क़ुव्वतें ईरान को निशाना बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान को ख़त्म करने और सेहूनियत की तोसी जैसे तस्वुरात दरअसल एक ख़तरनाक वहम हैं, जिनके नताइज पूरी दुनिया के लिए संगीन हो सकते हैं। अल-बरदाई के मुताबिक ऐसे इक़दामात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए भी नुकसानदा साबित हो सकते हैं। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के माहौल में शुमाली कोरिया ने जदीद जौहरी सलाहियत के हामिल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MRLS का तजुर्बा किया है। तजुर्बा जनूबी कोरिया की जानिब से तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बे के एक दिन बाद सामने आया है, जबकि शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA के मुताबिक मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने हफ्ते के रोज़ इस फौजी मशक़ की निगरानी की। इस दौरान 600 मिलीमीटर कैलिबर के इंतहाई दुरुस्त मुतादिद रॉकेट लॉन्चर्स और 2 आर्टिलरी कंपनियां शामिल थीं। इस मशक़ का मुशाहिदा किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी किम जो ए ने भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने कहा कि इस तजुर्बे से प्यांगयांग के दुश्मनों को 420 किलोमीटर के हदूद में उसकी फौजी सलाहियतों का अंदाज़ा होगा और टेक्निकल जौहरी हथियारों की तबाहकुन ताकत का वाज़ेह पैगाम भी मिलेगा। उधर जनूबी कोरिया के सदारती महल ब्लू हाउस ने इस इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए मज़म्मत की है और कहा है कि यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सिविल ने प्यांगयांग से मुतालबा किया कि वह ऐसे इक़दामात फौरी तौर पर बंद करे। ये तजुर्बा जनूबी कोरिया और अमेरिका की जानिब से जारी मौसम बहार की मुश्तरका फौजी मशक़ों के पस मंज़र में सामने आया है। ईरान के साबिक़ और मफरूर जिला वतन हुक्मरान रज़ा शाह पहलवी इन दिनों जर्मनी के शहर म्यूनिख में हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के दौरान रज़ा शाह पहलवी अवामी इज्तिमा से खिताब करते देखे गए। इस मौके पर रज़ा शाह पहलवी के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। खिताब के दौरान उनके रूबरू ब्लड प्रूफ ग्लास भी मौजूद था। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत दीगर अहम रहनुमा जुमा के मौके पर यौम क़ुद्स की रैली में अवाम के दरमियान बेखौफ सड़कों पर चलते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह दोनों वीडियोज़ पर खूब चर्चा हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ पर आग बरसाने की धमकी देते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कई ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम पहले ही ईरान की फौजी सलाहियत का 100% तबाह कर चुके हैं। ताहम शिकस्त के बावजूद ईरान 1-2 ड्रोन हमले या आबना हुर्मुज़ में या नज़दीकी इलाके में मिसाइल हमले कर सकता है या बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका साहली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करता रहेगा। किसी न किसी तरह हम जल्द ही आबना हुर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देंगे।
अमेरिकी और इसराइली हमलों से ईरान में अब तक 43,000 इमारतें तबाह हो गई हैं। ये हमले 28 फरवरी से जारी हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक तबाह होने वाली इन 43,000 में से 36,500 इमारतें इकामती यूनिट्स हैं। सिर्फ तेहरान में अमेरिका और इसराइल ने 10,000 इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज़ और वहाँ खड़ी 32 एम्बुलेंसें और 120 स्कूल शामिल हैं। ईरानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हमलों में 223 खवातीन शहीद हुई हैं। शहादत पाने वाले टीचर्स तलबा की तादाद 206 हो चुकी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमेरिका को ताना दिया है कि वह अपने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। एक बयान में उन्होंने कहा कि खित्ते में अमेरिकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके हैं और वो मुश्किलात से बचाने के बजाय मुश्किलात को दावत देने का सबब बन रही है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जजीरे खार्ग पर हमले की वीडियो जारी कर दी और पहुंचाए गए नुकसान की तफसीलात भी बताईं। ईरानी जजीरे खार्ग में हमले पर अमेरिकी सेनेट का कहना था कि गुज़िश्ता रात अमेरिकी फ़ौज ने खार्ग जजीरे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। हमलों में ईरानी बहरिया की बारूदी सुरंगों वाली तनसीबात को तबाह किया गया। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी हमलों में मिसाइल गोदाम, बंकर्स और दीगर फौजी तनसीबात को तबाह किया गया। खार्ग में ईरान की 90 से ज़्यादा फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम का कहना है कि जजीरे खार्ग से ईंधन की बरामदात बिला तात्तुल जारी हैं और वहां काम करने वाली तेल कंपनियों की सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक चल रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनेई अब जिंदा नहीं है। मुश्तबा कामनेई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। इस बीच मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका ने खार्ग जजीरे पर हमले के लिए मुत्तहदा अरब इमारात की ज़मीन इस्तेमाल की थी। मुत्तहदा अरब इमारात यूएई ने खलीजी मुल्कों पर हमलों को ईरान का अखलाकी दिवालियापन करार दे दिया। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के सीनियर डिप्लोमेटिक एडवाइज़र अनवर करकाश ने एक बयान में कहा कि खलीजी मुल्कों पर मिसाइलों और ड्रोन के हमले ईरान की अस्करी कमजोरी जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइली हमलों का जवाब देने की नाअहलियत और खलीजी मुल्कों को निशाना बनाने की ईरानी हिकमत अमली इसकी अस्करी कमजोरी, अखलाकी दिवालियापन और सियासी तनहाई को जाहिर कर रही है। अनवर करकाश ने मजीद कहा कि ईरान हमले रोक कर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। मशरिक़ वस्ता में खतरनाक सतह पर पहुंची नजर आ रही जंग से बैनुल-अक़वामी हवाई ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर हुई है। कई ममालिक की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने या पाबंदियां लगाने की वजह से आलमी परवाज़ों का पूरा शेड्यूल दरहम बरहम हो गया है। इन हालात में मुत्तहदा अरब इमारात यूएई के एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नई हिदायत के बाद हिंदुस्तान की बड़ी फ़ज़ाई कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ों पर भी नुमायां तौर पर असर पड़ा है। इत्तलात के मुताबिक इतवार के रोज़ 15 मार्च 2026 को तयशुदा कई एडहॉक परवाज़ को मनसूख करना पड़ा, जिससे हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान सफ़र करने वाले सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल में एयर इंडिया ने वाज़ेह किया कि दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की हिदायत की वजह से उसे अपनी परवाज़ें कम करने पर मजबूर होना पड़ा है। एयर इंडिया की दिल्ली दुबई रूट पर सिर्फ एक वापसी परवाज़ चलेगी, जबकि 5 में से 4 तयशुदा परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में होने वाले असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के मुताबिक इंतखाबात आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक आसाम, केरला और पुडुचेरी में एक ही मरहले में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक मरहले में वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे, जहाँ 23 अप्रैल को पहले मरहले और 29 अप्रैल को दूसरे मरहले की वोटिंग होगी। तमाम रियासतों और पुडुचेरी के नतायज 4 मई को बैक वक्त जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन इंतखाबात में तकरीबन 17.4 करोड़ वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात मजमूई तौर पर 824 असम्बली हल्कों में मुनक़िद होंगे, जिसके लिए मुल्क भर में 2,18,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल के इनेकाद के लिए तकरीबन 25 लाख इंतखाबी एहलकार तैनात किए जाएंगे, ताकि वोटिंग आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुकम्मल हो सके। कमीशन के मुताबिक इस बार तमाम पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी, ताकि वोटिंग के अमल की बराह रास्त निगरानी मुमकिन हो सके, जबकि हर पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की सतह पर खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। कमीशन ने बताया कि वोटर लिस्टों की हतमी इशाअत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मुकम्मल कर ली गई है, ताकि कोई अहल वोटर हक के राय दही से महरूम न रहे। उधर इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से कबल कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब मोदी के इंतखाबी ज़ाब्ते में तब्दील हो चुका है और इसके तहत इंतखाबी मुहिम में इल्ज़ाम तराशी और खौफ फैलाने की सियासत की जाती है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना साज। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम
सुल्तान मेक स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टुनीशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर, अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। ईरानी हमलों की 51वीं लहर, सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश, अमेरिकी शहरियों को फौरी इराक छोड़ने की हिदायत। आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए अमेरिका के साथ कई ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान को नाबूद करना काम ख्याली है, साबिक सरबराह IAEA की मगरबी पॉलिसियों पर तनकीद, मोहम्मद अल बरदाई का बयान। लेबनान बराह रास्त अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार, जंगबंदी को शर्त करार, इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई की धमकी के दौरान सिफारती कोशिशें तेज। शुमाली कोरिया का जौहरी सलाहियत के हामिल रॉकेट लॉन्चर का तजुर्बा, खित्ते में कशीदगी के दौरान किम जोंग उन की निगरानी में फौजी मशक। और आसाम, बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पौडुचेरी में असेंबली इंतखाबात का ऐलान, 9 अप्रैल से वोटिंग शुरू, तमाम नताइज 4 मई को किए जाएंगे जारी। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म को पहुंचता है। मुझे सामत के साथ इजाज़त, देखते रहिए 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।